Okay, students, in previous class we have talked about the performance of medium transmission line, okay, and in which we have discussed already the two methods, end condenser method and nominal T method. Now we are on nominal pi method. What is done in this method? Generally the capacity value, as I have explained you earlier, क्या कि जैसे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या लेते हैं, एक्चुअली इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन the length of the wire is considerable. Length is large, not too much large but large, up to 150 kilometer, and operating voltage is again high. Therefore, the capacity value will be of considerable, है ना. कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इग्नोर नहीं कर सकते, देन इट इज कंसिडरेबल. तो देन to take this capacitive effect in consideration, here we assume in previous two methods what were we doing. In end condenser method we have assumed that the condenser is concentrated lumped at the receiving end condenser method. Then in nominal T method, what we have considered, the capacity value is lumped between the center of the transmission line, बीच में है. Half of the resistance and inductance value is in left side, it means it in sending side, and half of the resistive and inductive value they are in receiving end side, and in between them there was a capacitor that was taking the form of T. Therefore, we were saying that to be nominal T method. Here, pi method. Oh, it means what we are going to do here. The capacity value will be taken at two ends, half at two ends. One in the side of sending end, and half in the side of sending end, and half in the receiving end, and in between there is a conductive wire. Okay, that transmission line. So let us see here what is the circuit diagram. Here this is the R, L or X, this is R value, this is X value, this one is your neutral wire, this is your live wire. In live wire, the supplied voltage, sending end voltage is what? That is Vs. Here the receiving end voltage is what? That is VR. Okay, this is your receiving end voltage, this is your sending end voltage, and here capacitance is considered as half in one side of sending. This is your half of the value, and here half of the value is taken, consider. Okay, हाफ हम कंसीडर क्या कैपेसिटेंस किधर ले लिए, रिसीविंग एंड में, हाफ सेंडिंग एंड में, और ये आपका बीच में क्या हो गया, इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना. ये आपका हो गया इंडक्टर और कैपेसिटर. तो लेट अस से दिस करंट एज यूजुअल, दिस करंट इज व्हाट, सेंडिंग एंड करंट, दिस इज IS. This one is IS. This current is receiving current and current IR. Say this current to be I. Then say this current to be ICS. For
what? C, IC for capacitive current and S for sending. And here capacitive current at receiving. Okay. Then okay, it is clear to you. Half of the capacitance here, half of the capacitance here. In between there is a resistive value, there is capacitive value. Here is the sending end current, here is the receiving end current, and this is sending end voltage, this is receiving end voltage. Okay. Now what we get here I is equal to, this current is the sum of these two currents. This is IR plus ICR. दिस करंट यहाँ आपका ये वाला दो पार्ट में बट गया, एक इधर इधर IR हो गया, इधर यहाँ देखिए IS क्या है, IS आपका बट गया यहाँ दो पार्ट में, I प्लस ICS, I प्लस ICS, है ना? क्या है ये? फिर से लिख दें, IR receiving end current, receiving end current, IS sending end current, ICS current through C/2 in sending end side, है ना? और ये हो गया ICR करंट थ्रू C/2, इधर भी C/2 है, इधर भी C/2, तो इधर सेंडिंग एंड, इधर इन रिसीविंग, है ना? अब ये हो गया आपका चार तरह का करंट, IS, IR, I लिख देते हैं, I is the current passing through R and X. ओके, यहाँ से अब है ए और लिख दें, VS is what? That sending end voltage, VR receiving end voltage, okay, and C/2 is the half capacitive value, okay, and already R is the resistance of the transmission line, and X is the inductive reactance of the ट्रांसमिशन line. सब चीज हो गया, है ना? अब है यहाँ हम V के टर्म में देखें तो आपका यहाँ पर वैल्यू देखें तो यहाँ क्या हो गया आपका IS, आइए बारी बारी से, I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू IR प्लस ICR, IR तो IR हो गया, ISCR क्या है, ICR है, किसके थ्रू, इसके थ्रू,
वोल्टेज। तो ये कितना हो गया, इसके थ्रू कितना हो गया, कैपेसिटेंस जे ओमेगा C2, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी आर। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। कैसा है, जे है, इसलिए ये क्या होगा, 90 डिग्री पर। आई एस क्या है, आई एस इज आई प्लस आई सी एस। आई सी एस क्या है, आई सी एस है इस जगह पर, तो ये कितना है, जे ओमेगा C/2 इंटू इस जगह पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी एस। तो हमारा सारा करंट निकल गया। वोल्टेज देखें, वोल्टेज क्या है, यहाँ देखें वी एस इज द सम, ये कितना है, इसमें KVL लागू करें, अप्लाई करें यहाँ पर, तो वी एस इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दिस, वी एस इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज व्हाट, आर प्लस जे एक्स इंटू आई, ओके, आर प्लस जे एक्स इंटू आई, और यू कैन से जेड इंटू आई, दिस इज योर आर प्लस जे एक्स इक्वल टू, ओके। Then let us now try to draw the phasor diagram। तो यहाँ हम ले लें रेफरेंस इज व्हाट, आवर रेफरेंस इज हाउ मच, व्हाट वी टेक रेफरेंस एज रेफरेंस इज रिसीविंग एंड वोल्टेज, ओके। हम किसको लेते हैं, इस वोल्टेज को रेफरेंस। Then VR will be what? VR will be equal to VR1 plus J0 or simply VR. Okay. IR is what? IR equal to IR, और कैसे लेते हैं हम लोग, इन लोग को cos phi माइनस जे साइन फाई, कौन सा फाई, रिसीविंग एंड है फाई, ओके। तो हम लोग ये देखें, वी आर टेकिंग वी आर एज रेफरेंस वोल्टेज। देन करंट, विच करंट, दिस करंट, वी आर और आई आर के बीच में फेज एंगल कितना होगा, फाई आर, है ना। तो हमें ले ले ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आई आर। कितना फेज एंगल है, दिखा दें हम, फेज एंगल इज व्हाट, फाई आर। ये एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ फाई आर। अब क्या है, ए आई और ए आई सी आर। तो आई सी आर इसके क्या है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, वी आर। तो एक ऐसा है कैपेसिटिव सर्किट, हम क्या बताए थे आपको कि कैपेसिटिव सर्किट में क्या लेना है, CIV, कैपेसिटिव सर्किट, देन करंट विल लीड वोल्टेज। तो यहाँ हमारा करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और कितना, लगभग 9। ये हम ले लें ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारा, और इधर नीचे रखिए तो फिर दिक्कत होगा। और तो ये हमारा कितना हो गया, आई, कौन सा, सी आर। आई सी आर कौन है, करंट ऑफ कैपेसिटर इन रिसीविंग एंड। ये आई फॉर करंट, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रिसीविंग एंड। हमारा दो तरफ है कैपेसिटर, एक सेंडिंग एंड की तरफ, तो उसको हम लोग करंट आई, करंट थ्रू कैपेसिटर ऑफ सेंडिंग एंड, करंट थ्रू कैपेसिटर ऑफ रिसीविंग, यहाँ लिख दिए हैं करंट थ्रू इसी इन सेंडिंग एंड साइड, करंट थ्रू C/2 इन रिसीविंग। तो ये हमारा कहाँ का है, यहाँ।
तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 90 हो गया। अब क्या है, यहाँ देखिए आई इज द सम, क्या देख रहे हैं, आई जो हमारा है कौन सा कैरेट, ये वाला, ये कैरेट, ये सम है इन दोनों का। तो हम आई आर ले लिए, आई सी आर ले लिए, तो इसका सम फेजर सम ऐसे ऐसे, तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब फेजर ये पढ़े हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि आपका कंटिन्यूअस साइड हो ट्रायंगल का, तो ये थर्ड साइड एक ट्रायंगल से होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज व्हाट, दिस करंट इज नाउ, दिस करंट इज आई, ये करंट हो गया। अब यहाँ हम लोग पहुँच गए। अब है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच गए। अब हमारा आई एस क्या है, आई और सी एस का सम। तो आई सी एस क्या है, ये हम आई सी एस इधर दिखा ऐसे, आई सी एस क्या है, कैपेसिटिव करंट है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा ऐसा ही होगा, ऐसे करें ऐसे, है ना, ये हमारा ऐसे और ये हमारा ऐसे। ये थोड़ा सा एंगल वाला ये कर देते हैं, इरेज कर देते हैं ऐसे। डार्क कर दे, ऐसे हो गया। ये आपका उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ये आपका ऐसे, ये हो गया डार्क। ये करंट कितना है हमारा, आई, ये वाला यहाँ दिखा दें आई। अब क्या है, ये हमारा कैसा हो गया, ये वाला करंट ऐसे, करंट कौन सा होगा, ये वाला आई सी एस, थोड़ा नीचे दिखा, ये आई सी एस होगा, कौन सा, ये वाला करंट। और आई प्लस आई सी एस इक्वल टू आई एस, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आई सी एस, है ना, ये हो गया हमारा आई सी एस, हो गया सारा करंट। देखिए ये आपका आई आर, ये इसके 90 डिग्री के आस ये हो गया आई सी आर, आई सी आर का सम आई, ये हो गया आई। अब आई और आई सी एस का सम आई एस, तो आई ये हो गया, आई सी एस है 90 डिग्री पर, और ये हमारा ए आई सी एस हो गया। हमारा सारा करंट ए हो गया, है ना, 1 2 3 4 5, पाँचों करंट हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वोल्टेज। तो V क्या है हमारा, देखिए V क्या है, यहाँ पर क्लियर दे दें। तो V क्या था, ड्रॉप, VS क्या है, ड्रॉप ऑफ दिस, ऐसे करके अलग अलग दिखा दें। यहाँ पर ये आपका R इंटू आई प्लस जे एक्स आई प्लस जेड आई इक्वल टू जेड आई, है ना, ये आर हो गया प्लस यहाँ हो गया, ये हो गया वी एस इक्वल टू इतना प्लस वी आर, ये हमारा ये हो गया वी आर, है ना। ये क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और वी आर ये हो गया। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू वी एस अब हमारा कितना हो गया, ए प्लस वी आर, है ना। तो वी आर यहाँ हो गया। अब आर आई हम लेंगे, आर आई कौन सा है, ए वाला। तो ये हमारा नेचर कौन है, ये आर आई ये है ना, ये आर आई है। तो इसके पैरेलल कैसे लेंगे, ये हम ले लेंगे, ये इसके पैरेलल आई है, क्या रेजिस्टिव ड्रॉप क्या होगा, इसके एंगल ए होगा फेज में, इसके पैरेलल ये आई के पैरेलल, तो ये हो गया हमारा आर इंटू आई, ये ड्रॉप
अब ए हमारा कितना होगा, ए वाला इसके 90 डिग्री पर, तो इसका 90 डिग्री ऐसे लीजिए, ये लीजिए इसके 90 डिग्री यहाँ पर, ये है ऐसे, इस पर 90 डिग्री ऐसे, तो ये क्या हो गया एक्स आई, है ना। कैसे देखिए, आर आई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर, तो ये क्या होगा, आर आई किसका ये होगा, फेज में होगा, आई और रजिस्टर्ड ड्रॉप सेम फेज में होता है। तो जैसे ए जिस एंगल पर ए है उस एंगल पर ए, एक्स आई किसका होगा, इस पर परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 90 डिग्री पर। अब इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है हमारा जेड आई, है ना, ये हो गया जेड आई, ए आर प्लस जे एक्स इक्वल टू जेड आई, है ना। हम लोग जेड इक्वल टू क्या जानते हैं, आर प्लस जे एक्स, और ये जेड आई क्या हो गया, इतना इंटू आई, तो ये हमारा दिस प्लस दिस इक्वल टू जेड आई, ओके। अब ये हमारा क्या हो गया, वी आर और ये जेड आई, ये हो गया वी आर और ये हो गया जेड आई, मिला के ये सम क्या हो गया आपका, ये हो गया वी एस, ये हो गया वी एस, है ना। तो इसको हम लोग कह रहे हैं वी एस, ओके। देन वी हैव ड्रॉन द वैल्यू ऑफ IR, ICR, ICS, and this is your IS, and this is your VR, RI, XI, VS, okay. And the angle between IS, what is this one is sending and volt current, and this is sending and voltage. The angle between this, angle between what, this sending and voltage and this sending and current, this angle will be what, this angle will be phi s, okay. Now everything is clear to you. Then here we have discussed about nominal T method, and it will be more clarified when we solve the numerical problem related with this one, है ना। तो हम लोग फिर देखते हैं इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आई हैव सॉल्व वन न्यूमेरिकल रिलेटेड विथ व्हाट, दैट वाज शॉर्ट ट्रांसमिशन। नाउ वी विल टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इट मीन्स वन फ्रॉम condenser method, nominal T method, nominal pi method, okay. Then we meet in next class, okay.